گنڈاپور صاحب کے لیے اسپیشل پیغام ہے ایز اے ٹورسٹ کہ آپ کے پی کے لوگوں کو لالی پاپ نہ دیں، اللہ کے واسطے پریکٹیکل بات کریں، پریکٹیکل کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد علی اور اس وقت میں اپنی علاقہ اپر دیر نہاگ درہ میں موجود ہوں، اور یہاں ہمارے ساتھ کچھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ کراچی سے آئے ہیں۔ ناظم ملک بخشیر صاحب کے یہ مہمان ہیں، خصوصی طور پر وہاں پر آئے تھے۔ تو کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے علاقے کے حوالے سے کہ وہ یہاں کی خوبصورتی اور خصوصی طور پر یہاں کے مہمان نوازی اور ان سے بھی بڑھ کر یہاں کی جو ٹورزم ہے، سیر و سیاحت ہے، وہ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجیے گا، تعارف کیجیے گا، شارٹلی آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام سید کاشف امین ہے، میں تعلق کراچی سے ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آپ ادھر آئے ہمارے علاقے میں، تو آپ کو جو ہے ہم پشتو میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پخیر والے کہتے ہیں، پخیر والے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ادھر آئے تو آپ کو یہ ہمارا علاقہ کیسا لگا پہلی نظر میں؟ پہلے تو ہم بہت عرصے پہلے آئے تھے اور اس دوران حالات بھی صحیح نہیں تھے کراچی کے، اور مہاجر پشتون جو ہے وہ ایک جھگڑا سا بھی چل رہا تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس کے باوجود ہم پینٹ شرٹ اور کیپ میں آئے تھے یہاں پہ چشمہ لگا کے۔ لیکن نو ڈاؤٹ لوگوں کا بہت پیار تھا، ایک رسپیکٹ تھی جو مہمانوں کو دی جاتی ہے، اور جو پختونوں کی ایک روایت ہے کہ ادھر ان کے لوگ مر رہے ہوں اور ادھر کوئی آیا ہو تو انہوں نے بڑی اس دوران رسپیکٹ دی، اور ہم سے بھی بات کی کہ ادھر سمجھائیں لوگوں کو کہ ہم یہاں پہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم ایک کراچی معاشی ہب ہے، تو ہم وہاں آتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن نو ڈاؤٹ بڑی رسپیکٹ دی، اچھا، ورنہ بدلے میں یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ کا کوئی مارے اور آپ کسی اس میں جائیں تو وہ بدلے میں، ہاں، لیکن یہاں بڑی بدلے میں رسپیکٹ دی، اور آج سے نہیں کوئی 20-25 سال سے ہم آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، جب آپ آئے تو یہ جو ہریالی ہے، موسم ہے، یہاں کے موسم، یہاں کی سردی ٹھنڈی، یہاں جو بہتے آبشارے ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے یہاں کے لوگوں پہ، اور یہاں کے لوگ جس طرح ایماندار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، دین سے قریب ہوتے ہیں، اور پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے محنتی بھی بہت ہوتے ہیں، ہر چیز میں محنت کرتے ہیں، اور اچھے برے لوگ تو ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پازیٹیو لوگ بہت ہیں، مذہبی رجحان زیادہ ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے اللہ کا انعام بھی ان کے لیے ہے کہ تازہ پانی ہے، تازہ آب و ہوا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، اور وہ اس قابل بھی ہیں کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات میں جلدی سوتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور معصوم لوگ ہیں، بہت اچھے اور سچے لوگ ہیں، جن سے میرا واسطہ پڑا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اچھا، جب آپ جائیں گے واپس اپنے علاقے میں تو یہاں کی جو عکاسی ہے، یہاں کے جو امیج ہے، وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ میں کیسے علاقے میں گیا تھا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کی جو ہے آپ کس طرح سے لوگوں کو کہیں گے یہاں؟ بھائی ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں، جیسے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ایم کیو ایم سے، لیکن ایم کیو ایم کا کریکٹر ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ ایک ڈرونا کوئی خواب تھا، لیکن اس میں جو کلر والی پکچر بھری ہے وہ مصطفیٰ کمال نے آ کے بھری، کیونکہ 2016 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حالات کراچی کے کیا تھے، لاشیں گرتی تھیں اور مسلمان مرتے تھے، انسان مرتے تھے، میں یہ کہوں گا، لیکن مصطفیٰ کمال نے آ کے ان چیزوں کو روکا، انیس قائم خانی نے، اور ایک انسانیت کا میسج دیا۔ آج انہی کے ایریوں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ سوراب گوٹ سے پختون آبادی سے جیت سکتا ہے یا بنارس سے جیت سکتا ہے، لیکن جب یہ محبتیں اور دل ملے تو آج ہمارا پختون جو بھائی ہے وہاں سے ایم این اے بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، اور ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پکڑ کر رکھیں گے، رسی اللہ کی، اور اس پہ عمل کریں گے، کتاب پہ، قرآن پاک پہ، تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ یہاں کے سیاحتی مقامات بہت زیادہ مشہور ہے اس علاقے کے، اور یہ خصوصی طور پر دیر کے اسکائی لینڈ کا نام میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا، بہت آؤٹ کلاس اسکائی لینڈ بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر برف پڑی ہوئی ہے، بالکل وہ ڈکی ہے برف سے۔ اس کے ساتھ رود ویلی بھی ہے، تقریباً جون جولائی میں ایک میلہ بھی ہے، اور ملک برف سے جو ہے وہ کئی سیاح یہاں پر آ رہے ہیں، تو آپ ادھر آئیں گے رود ویلی یا اسکائی لینڈ؟ سب سے پہلے بات ہے کہ یہاں کے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اب جیسے ہم مری جاتے ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے، چاہے لاہور سے آئیں، کراچی سے آئیں، اب ہم 1800-2000 کلومیٹر سے دور آ رہے ہیں پیسے خرچ کر کے، تو بدلے میں ہمیں رسپیکٹ، محبت، پیسہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، رسپیکٹ اور محبت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میری یہاں کوئی رشتہ داری نہیں تھی،
शेर अहमद भाई से या शेर अहमद साहब या वो जो नाजिम साहब से, लेकिन उनका रवैया, उनका इखलाक, उनका किरदार इस काबिल है कि वो रिश्ते बनते चले गए, और आपको बार बार आने पर मजबूर करते हैं। वो हमारी तरफ आते हैं कराची, हम उनकी तरफ आते हैं, तो ये मजबूर करते हैं। ये रिस्पेक्ट ही है, Respect। और ये जेवर है, रिस्पेक्ट, इखलाक, किरदार और मेहमान नवाजी। जिस तरह से हमारे सिंध में रिवायत है, इससे बढ़ के यहाँ पख्तूनों की रिवायत है, वो हमने प्रैक्टिकल देखी है। अच्छा सर, मैं जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ टूरिज़म को अगर अपनाई जाए और यहाँ के जो सैर और सियाहत के जो मकामात है उस पर काम की जाए, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ के मुंतखब क़यादत की तरफ से, तो यहाँ अक्सर में लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, नौजवान तबका वो ओवरसीज़ जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ देखिए, के हवाले से, मुंतखब क़यादत के हवाले से पैगाम क्या है आपका बतौर एक सियाह? आजकल के जो हालात हैं, एक रियासत होती है माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये मसलन बहुत तकलीफ़ के साथ ये जुमला मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ रियासत हमें आपस में लड़ाती रही है, पता नहीं क्यों। ये बहुत ही तल्ख जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बड़े तल्ख तजर्बात से गुजरे हैं कराची में, ठीक है, और फिर रियासत उसका क्रेडिट भी लेती है कि आज हमने अमन कर दिया कराची में। तो भाई जब जंग हो रही थी तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? जब भी तो आप ही मौजूद थे, कोई इसराइल, अमेरिका और इंडिया तो मौजूद नहीं था। तो सयाहत जब ही आएगी जब आपके मुल्क में अमन होगा, अमन सबसे पहले ज़रूरी है, जरूरी है। और आपका माशी हब कराची है, यहाँ से चारों पांचों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलाएं, कश्मीर से भी मिलाएं, लोग वहाँ आते हैं रोज़गार कमाने। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको प्री प्लान एक कौमी पॉलिसी नहीं होती कि इसको तबाह बर्बाद करना है, तो उस तरीके से किया जा रहा है। जब आपका मेगा सिटी कराची जो माशी हब भी है, दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा शहर भी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी, तो जब आप उसको प्री प्लान तबाह कर रहे हैं, तो ये तो बेचारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका कौन पुरसान हाल होगा? ये तो वैसी तबाह हाल रहा है, बम बिलास और दुनिया जहान के यहाँ पे कत्लो गारत गरी हुई है KPK में, लेकिन यहाँ के लोगों को सलूट है कि वो आज भी खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, और मेहमान नवाज भी हैं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अच्छा, यहाँ से मुंतखब MPI या अमीन साहब PTI से उसका ताल्लुक़ है, MNA साहबजादा सिबगतुल्लाह साहब उनका भी ताल्लुक़ PTI से है, तहसील चेयरमैन लोकल यहाँ अयानुल्लाह है, उसका ताल्लुक़ भी PTI से है, सूबे में भी PTI की गवर्नमेंट है, पूरी मलाकन डिवीज़न में क्लीन स्वीप कर दिया, अभी तक किसी ने सीट नहीं जीता है। वो जो इलेक्शन हुआ था बाजोड़ में लास्ट टाइम, सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी का एक ही नुमाइंदा सूबे में है, और निसार बाज़ उसका नाम है। यहाँ के मुंतखब क़यादत के नाम पैगाम क्या है आपका बतौर एक टूरिस्ट, यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात है उसे हल करने के लिए, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ जो सड़कें हैं उसके बनाने के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, उनका जो रुझान है ना, वो बड़ों को सोशल मीडिया पे मैं जो देखता हूँ, हमें हर कौमियत की अपनी रिवायत होती है, सकाफत होती है, तहजीब होती है, लेकिन जैसे बाचा खान है, बहुत बड़ा नाम है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, वली खान है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा नाम है हमारे लिए, समझ लो बड़ों का दर्जा रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ लियाकत अली खान होते थे, कायदे आज़म होते थे जिन्होंने मुल्क बनाया, अल्लामा इकबाल साहब होते थे, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो हम इसी तरीके से जो उर्दू बोलने वाले हैं कराची के, वो बाचा खान और वली खान की रिस्पेक्ट करते हैं, माशाल्लाह, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर है, किरदार है। लेकिन जो आजकल के सोशल मीडिया के हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो ये वाली चीज़ें दूर होते जा रहे हैं, ये वाली चीज़ों से, हकीकत से दूर हो जा रहे हैं कि कोई उनके लीडर को कुछ बोले तो वो बिल्कुल बदतमीज़ी पे उतर जाते हैं। तो ये वाला जब कल्चर होगा तो फिर इलाके में काम क्या होगा? फिर यही होगा जो हो रहा है। हालांकि अल्लाह ने एक मौका दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि सोच समझ के बंदों को लाना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को ना लाएं जो आज हड्डी बना हुआ है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इलाके के हवाले से? इलाके के हवाले से मैं बताऊंगा कि ये हमारे दोस्त हैं, हम सब जो है ना हर 3 महीने या 4 महीने में यहाँ का राउंड लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ मोहब्बत मिलती है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के मकामात अच्छे हैं, खूबसूरत है, कुदरती हुस्न है, तो जाहिर है इसी वजह से हम आते हैं ना। और हमें जब भी हम आते हैं हमें बढ़कर मोहब्बत मिलती है, पहले से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो सकाफ़त है, ये मेहमान नवाजी, मोहब्बत करना, ख्याल करना, तो हम बिल्कुल, हम जब यहाँ आते हैं ना तो हम यहाँ ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम अपने घर में हैं, ठीक है। और यहाँ हम इससे पहले अपनी फैमिली को भी लेकर आते हैं, तो इस जगह की मैं क्या तारीफ़ करूँ, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत जो है ना इस जगह में रखी है। ज़ाहिरी तो वो जो आयत उतरी वो इन जगहों के लिए उतरी है, तो इन लोगों के अंदर भी अल्लाह ताला ने वही चीज़ें डाली हैं,
वही मोहब्बत डाली है और इस जगह में भी वो चीज़ डाली, इस पानी में भी। तो इसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, जिस जगह की, जिस पहाड़ों की, दरख्तों की तारीफ अल्लाह कर रहा है, तो फिर मैं और आप क्या तारीफ करेंगे। रही कि काशिफ भाई ने जो बात की है, काशिफ भाई ने वो बात की है कि इन्होंने इस अपनी कम गुफ्तगू के अंदर ना तमाम पूरी चीज़ों को समो दिया, जिसके अंदर सियासी गुफ्तगू भी हुई, मजहबी गुफ्तगू भी हुई और ये पहाड़ों की खूबसूरती भी बयान की। तो इंशाअल्लाह ताला बस आप लोगों की इसी तरह मोहब्बत मिलती रहेगी और हम लोग आते रहेंगे। और जो थोड़ी बहुत बीच में नफरतें हैं, तो वो हम जब यहाँ से होके जाते हैं ना, जब हम यहाँ से होके जाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है अपने लोगों को जाके बताना कि नहीं भाई, पख्तूनों का सफीर, हाँ, सफीर बन के जाते हैं। और फिर हमारी जब वहाँ से फैमिली आती है, हमारी लेडीज आती है यहाँ पे, माशाल्लाह बड़ा ख्याल करते हैं। यहाँ की ख़वातीन जो माएँ बहनें पख्तूनों की, वो हमारी फैमिली की जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सकाफत में हमारे वहाँ ये चीज़ें कम है बनिस्बत यहाँ के, ठीक है, ना होने के बराबर। तो आपका पैगाम तो यानी कि ये अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि आप जो भी नेक अमल होगा वो छुपेगा नहीं। तो ये इसी तरीके से, बाकी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ के लोगों को, गवर्नमेंट को थोड़ा सा, गवर्नमेंट के जो यहाँ के जो सरपरस्त आला है, उनको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा गंडापुर साहब के लिए स्पेशल पैगाम है एज अ टूरिस्ट, एज अ छोटा भाई, कि आप APK के लोगों को लॉलीपॉप ना दें, अल्लाह के वास्ते प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल काम करें। यहाँ पे ना लॉलीपॉप ना दें। ये कौम 75 सालों से लॉलीपॉप पे चल रही है, तो खुदा के वास्ते प्रैक्टिकल काम करें और उसकी बुनियाद रखें, ताकि आगे कंपटीशन हो कि कोई वज़ीर आला आया था और प्रैक्टिकल काम करके किया। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, तौर पर कि जो पॉजिटिव इमेज है वो करने के लिए। और काशिफ साहब खसूसी तौर पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे बड़े लीडर बादशाह खान बाबा फखरे ईशिया है, आपने उसको भी बड़े अल्फाज से याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे काशिफ साहब, उसके साथ साथ उसके और भी मेहमान थे, हमारे साथ कुछ ख़ास गुफ्तगू कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि पख्तूनों की जो पॉजिटिविटी है, जिस तरह से उन्होंने अपने अल्फाज में बयान की है, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह से उन्होंने पख्तूनों के जो माशी सूरत हाल है, जो यहाँ के सियाहती सूरत हाल है, और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है और यहाँ की जो खूबसूरती है, किस तरह से उन्होंने बयान किया, वो मैं दोबारा बयान नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह यहाँ ये जो मेहमान है, इसी तरह से मज़ीद और भी यहाँ से जब जाएंगे तो वो पख्तूनों का जो पॉजिटिव इमेज है वो अपने इलाकों में बयान करेंगे। अब और जो बड़े साहब ने कहा कि फैमिली आएंगे, तो बड़े साहब ने कहा कि यहाँ बतौर पख्तूनों का सफ़ीर हम बन के जाएंगे, तो आप पख्तूनों की जो पॉजिटिविटी है वो हम बयान करेंगे। तो इस तरह से मज़ीद लोगों को भी हम दावत दे रहे हैं कि आप इधर आइए, हमारे इलाके में, दीर में आइए, निहाग दरे में आइए, और यहाँ का जो खूबसूरती है वहाँ से आप जो है लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। मुस्तफ़ा भाई की कमाल वाली टीम से काशिफ भाई का ताल्लुक़ है, तो हम दोबारा भी इनको वेलकम कहेंगे कि आप दोबारा भी आइए और यहाँ का जो खूबसूरती है आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और नाज़िम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनकी मेहमान नवाजी की है। बहुत बहुत शुक्रिया।